factory had collapsed late last night. 6 men have died and over 50 workers rescued with severe injuries, but many are still fear-trapped. Eyewitnesses said the entire factory building collapsed like a pack of cards within seconds. Initial reports had indicated an explosion in a boiler, but this was ruled out after preliminary investigation. The National Disaster Response Force is leading the rescue operation and sniffer dogs have been deployed. Efforts are on to rescue the trapped workers from the rubble, which is about 30 to 40 feet high. 2 persons out of those rescued have suffered serious injuries and they have been admitted in the ICU unit of a nearby hospital. Police and medical teams are also present to oversee the work. Meanwhile, Principal Secretary to Chief Minister S.K. Sandhu has announced compensation for the victims in Jalandhar building collapse. The government has announced a relief of rupees 2 lakh for the deceased and 1 lakh rupees to those seriously injured and free treatment for the injured. 2 लाख रुपया और ट्रीटमेंट फ्री। दूसरा, अगर 60% से 80% तक किसी की डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए तकरीबन 45,000 रुपया दिया जाएगा। अगर 80% से ऊपर डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए 65,000 रुपया। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी ऑर्डर दिए हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं स्टेट में, उन सब का एक सेफ्टी ऑडिट किया जाए, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, सो दैट कल को कोई और ऐसी दुर्घटना जो है वो ना हो पाए। ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਕੈਜੂਅਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 67 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 2-4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਸੀਗੀ RDF ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। And we now go across live to our correspondent Gaurav Walia, who is at Ground Zero in Jalandhar and keeping an eye on the rescue and relief operations. Gaurav, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? शैली, अगर इस मौके की बात की जाए तो तकरीबन 1 दिन पूरा होने को आया है। कुछ घंटे में 24 घंटे हो जाएंगे, तो 24 घंटे में अगर देखा जाए तो राहत और बचाव कार्य जो चल रहे थे कल रात से बदस्तूर जो जारी हैं उनमें कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, पर सफलता उस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली जितनी की जो प्रशासन है वो चाह रहा था कि जो लोग हैं जो दबे हुए हैं उनको सही तरीके से निकाला जा सके। सबसे बड़ी जो खामी सामने आई है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं CM, उनसे भी मैंने सवाल पूछा तो ये जानना चाहा कि आपके पास कितने लोगों की ऐसी लिस्ट है जो आप कह सकते हैं कि जिनकी बारे में आप जानते हैं, जिनको आप ढूंढ रहे हैं, और इसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं कि जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन्होंने क्या बताया है कि कल जो रात को कितने जो वर्कर्स हैं उनकी अटेंडेंस रजिस्टर में नोट हुई थी और उतने ही जो वर्कर्स हैं उनको आप ढूंढ रहे हैं। तो इस बात का उनके पास जवाब नहीं था। इस बात को उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया कि हमें जो मालिक ने बताया था, फैक्ट्री मालिक ने, वो 50 से 60 के करीब बताया था और 50 के 60 के करीब ही जो व्यक्ति हैं उनको हम बाहर निकाल चुके हैं, जिसमें से 6 की जो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद भी हम अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं और एंड तक जारी रखेंगे, आखिर तक जारी रखेंगे। इस बात को समझा जा सकता है कि प्रशासन खुद जानता है कि काफी लोग बीच में दबे हो सकते हैं, परंतु जो उनकी औपचारिक रूप से जो घोषणा है कि वो कितने हो सकते हैं ये नहीं बताया जा रहा। फैक्ट्री के मालिक की तरफ से भी ये इस बात को नहीं रिवील किया जा रहा कि कितने लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि जो आई विटनेसेस हैं, जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, तकरीबन 150 से 200 जो लोग थे वो कल रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे। अगर हम उनकी बात पे यकीन करें तो 60 के करीब जो लोग हैं वो बाहर आ चुके हैं, पर अभी बहुत ऐसे जो लोग हैं उनको अभी भी बचाना बाकी है, जिसके लिए राहत या बचाव कार्य जो जारी हैं। रात का समय है, जो एडिक्वेट जो लाइट चाहिए थी, जिसके साथ ये जो काम है सुचारू रूप से पूरे प्रॉपर ढंग से चलाया जा सकता था, वो वहां पे लाइट मिसिंग है।
शाम को भी हमने जो एसडीएम जालंधर है उनसे पूछा कि रात का समय होने जा रहा है, किस प्रकार के अरेंजमेंट्स आपने किए हैं, क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था शाम के 6:30 बजे तक आपने नहीं की है। तो उनका कहना था कि रात होगी तो हम आप देख लेंगे कि लाइट भी होगी। अभी हम वही मौके पे ही खड़े हैं, तो यहाँ पे हमने जो देखा है कि आप देख सकते हैं जो शॉर्ट साथ में चल रहे हैं कि जो लाइट है वहां पे नाम मात्र की लाइट है, जिसमें से किसी को भी नहीं ढूंढा जा सकता, और बचाने की बात तो बहुत दूर की है। गौरव, सबसे अहम बात इन सभी बातों में से क्या अभी तक इस हादसे का कारण पता चल पाया है? शैली, इस चीज के बारे में हमने खुद भी जहां जांच पड़ताल करने की कोशिश की और अधिकारियों से भी बातचीत की और उनसे भी जानना चाहा कि क्या अब तक सामने आए हैं, कैसे ऐसे तथ्य हैं जिनके ऊपर आप रोशनी डाल सके कि क्या कारण रहा पीछे, कि 3 मंजिला जो इमारत है वो कैसे ढह गई, क्या कारण पीछे रह सकते हैं कि तकरीबन 4-5 साल पहले ये जो इमारत बनी थी ये कैसे ढह गई, कि क्या कमियां पीछे रह सकती हैं, क्या इसकी नींव कमजोर थी, क्या यहाँ पे बॉयलर था, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक था जैसे बताया जा रहा है। तो किसी भी चीज के ऊपर स्वीकृति किसी भी अधिकारी ने नहीं दी, क्योंकि ये कोई भी चीज वहां पे नहीं थी। साफ साफ तौर पर है कि कोई ना कोई ऐसी चीज बात जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको नहीं बताया जा रहा, क्योंकि उसे शायद लगता है कि उनको इससे लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लोग यहाँ पे जो कर्मचारी हैं रात को काम कर रहे थे उनके बारे में भी आई थिंक जो सीक्रेट है वो रिवील हो सकता है, जो सच तो सामने आ सकता है। इस कारण का नहीं पता चल सकता, क्योंकि अगर आप इमारत को देखें तो इमारत बहुत बुरी तरीके से धराशायी होकर ये जमीन पर गिरी है। अगर सुबह से लेकर कल से लेकर अगर आज तक की बात करें तो जितना मलबा गिरा है उसका 1% भी मलबा अभी तक जो प्रशासन है उठाने में कामयाब नहीं हुआ है। गौरव, आपकी क्या फैक्ट्री के मालिक से कोई बात हो पाई अभी तक? शैली, हमने बात करने की कोशिश जरूर की पर उन्होंने बात करने से मना कर दिया। कल ही जो बात हुई थी उसी के बारे में जो हमें अभी भी मालूम है, जो उन्होंने कहा था 50 से 60 बंदे हो सकते हैं। कारण क्या रहा, जो ये घायल कर्मचारी को निकाला गया उनको कहां लेके जाया गया, उनके चैरिटेबल हॉस्पिटल में किसी मीडिया कर्मी को जाने नहीं दिया जा रहा, क्यों उनसे लुकाया जा रहा है, कौन कितने घायल हैं, उनकी क्या अवस्था है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। बाद में जो प्रशासन ने थोड़ा उनके ऊपर दबाव डाला तो जाके उन्होंने जानकारी दी कि 50 से जो 60 लोग हैं इनको जो मामूली जो चोटें लगी थी उसके बाद इनको सिविल हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। इस प्रकार की जानकारी उन्होंने बाद में प्रशासन के दबाव पे दी, पर अपनी ओर से स्वैच्छिक रूप से उन्होंने कोई भी जानकारी किसी को नहीं दी। मीडिया से तो कन्नी कतरा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक भी बार उन्होंने मीडिया से बात करना उचित नहीं समझा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर जो लोग मरे हैं, जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनके जो परिवार वाले हैं उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे की बात जरूर की गई है, पर फैक्ट्री के मालिक की तौर से जो जिनके साथ ये कर्मचारी जुड़े हुए थे उनकी तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। और ये जितने भी परिवार वाले हैं, उनके सगे संबंधी हैं, काफी चिंतित हैं। इस चीज को लेकर वो अपनी ओर से विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक चल रही है, थोड़ी देर पहले जालंधर में यहाँ पे जाम भी लगाया गया था। अगली रणनीति के लिए वो सारे मिलकर बैठ के अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। पूरे एरिया को, ये मैं जहां पे खड़ा हूं ये फोकल पॉइंट का एरिया है, बिल्कुल मेरे सामने और मेरे पीछे जितना भी एरिया है ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरी हैवी फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। हजारों की तादाद में जो पुलिस बल है यहां पे लगा दिए गए हैं। समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी समझता है कि जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। अगर रात को इनके जो परिजन हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं, तो स्थिति जो है उनके हाथ से निकल सकती है, उनके काबू से बाहर हो सकती है। गौरव, जो लोग घायल हुए हैं इस हादसे में उनमें से कितने सीरियसली इंजर्ड हैं? चलिए, अगर बहुत ज्यादा जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं 3 ट्रॉमा सेंटर में जो आईसीयू में भर्ती किए गए हैं, उनके अलावा कुछ जो ज्यादा घायल हुए हैं उनको ज्यादातर लेग्स और उनकी शोल्डर की इंजरीज हैं जो दब गए थे मलबे के बीच में। उनको अगर उनकी तादाद हम की जाए तो तकरीबन 25 से 30 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, जो अभी भी उपचाराधीन हैं। कुछ लोगों को छुट्टी जरूर दे दी गई है, परंतु किनको दी गई है और कौन कितने घायल हैं इसकी कोई भी अभी तक सूची जारी नहीं की गई है, ना ही प्रशासन की तरफ से ना ही उनकी तरफ से। कल सुबह से देख रहे हैं जो प्रशासन का रवैया है, मीडिया को सिर्फ टू द पॉइंट रखा जा रहा है। अगर पूछने पे ही कुछ बताया जा रहा है, अपनी ओर से जो प्रशासन है वो भी आगे आके उन्होंने भी कोई बात ऐसी नहीं है जो बताया गया हो कि क्या कारण पीछे रहा, क्यों जो ये इमारत है 4-5 साल पहले जो बनी इमारत है, तकरीबन नई इमारत में ही गिनती उसकी होती है, तो इतने कम समय पहले बनी हुई इमारत कैसे धराशायी हो सकती है, क्या कारण पीछे रहे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गौरव, क्या ऐसा लगता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी रात भर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी रहेंगे?
शैली इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये रात भर जारी रहेंगे और अगले 2 या 3 दिन तक जारी रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार ये जो मलबा है 3 ये मंजिला इमारत का मलबा है, बहुत ज्यादा ये मलबा है। इसको अगर हम बात करें तो 3 दिन भी कम पड़ेंगे इस मलबे को हटाने के लिए, और इस मलबे में से लोगों को जिंदा निकालने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। और जब अब रात का समय है, वहां पे लाइट का भी प्रबंध संपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। फ्लड लाइट्स की जरूरत थी, फ्लड लाइट्स इंस्टॉल नहीं की गई हैं, पर दाद देनी होगी आर्मी की, क्योंकि सुबह तक जो आर्मी नहीं थी, आर्मी को रिक्वेस्ट करके अब बुलाया गया है। आर्मी जो आगे उसने टेक ओवर किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है उनके साथ मिलकर पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ अब आर्मी डटी है इस मैदान में, और उनकी तरफ से जो ये राहत के और बचाव कार्य हैं इनको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। Gaurav, thank you so much for all that information. That was our correspondent Gaurav Walia from Jalandhar, where a 3-storied blanket making factory had collapsed late last night. Efforts are on to rescue the trapped workers from the rubble, which is about 30 to 40 feet high. The government has announced a relief of 2 lakh rupees for the deceased, 1 lakh rupees to those seriously injured, and free treatment for the injured. Now, moving on, this is what Chief Minister Prakash Singh Badal had to say about the tragedy. ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨਾਲ 3 ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਚੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। It's time for a short break here. Do stay with us. Worst part about filmmaking is after the film is made, marketing and promoting. जानल यारो, आपको अगर प्रेज करना है तो आपको इस तरह से देखना चाहिए कि वो फ्लॉप फिल्म, क्योंकि हम फ्लॉप फिल्म ही बनाने जा रहे थे। बोलना है दैट वाज द फर्स्ट रीमिक्स एल्बम ऑफ द कंट्री। उसके बाद रीमिक्स का नाम खराब हुआ, वीडियोस खराब हुए, एक इट स्टार्टेड बिकमिंग नेगेटिव। Not a very planned actor. Once you're in costume, once you're in that mind space, I think it just falls into place. DNID मीडिया इंस्टीट्यूट इस रीजन का सिर्फ एक अजिहा इंस्टीट्यूट है जिथे स्टूडेंट्स ਨੂੰ न्यूज़ रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कैमरा, एंकरिंग ਅਤੇ मोशन ग्राफिक्स की ट्रेनिंग नेशनल ਅਤੇ इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DNID मीडिया इंस्टीट्यूट पिछले सारे बैचेस ਦੇ स्टूडेंट्स की 75% सफल प्लेसमेंट्स के बाद जुलाई 2012 ਵਿੱਚ नवा बैच शुरू ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स सानू फोन और ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।